Welcome students in my YouTube channels. Today we delivered the topic reproduction in human beings. This is the very important topic for all of you because from this topic in board examination that is asked the many questions as well as that is also the diagram that is given from this topic. Okay, and why we are study about them, because you know about them after the growth in male and female there are some changes occurs, just like in case of male after the 16 year, in case of female after the 12 years some changes occurs in bodies जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं. एंड दिस द इंडिकेशन ऑफ reproductive organ developments, maturation of reproductive systems. Okay, and is this period, if they maintain their body as well as if they are not diverted in his path, they achieve their aims. Otherwise, that is the move their aims. Okay, so let us start the topic reproduction in human beings. Those cannot subscribe my channels, they subscribe them, like and share it. Okay, so start the topic reproduction in human beings. Human being is so sexual dimorphisms as they are unisexual. What is the sexual dimorphism? Male and female, that is different from the external morphological characters. मेल और फीमेल जो बॉडी स्ट्रक्चर बेस पर डिफरेंट होते हैं उसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है. ठीक है, and you know about the human beings are unisexual, means they contain only one reproductive organs, means male and female, that is the different. Okay, in case of male, in case of human beings, in teenage stage, means in near or early teenage stage, means 12 and 14 years, some of these changes are common to both male and female. Some changes appears in the body, and there are some common changes occur in case of both male and female. We begins to notice thick hair growing in new parts of the body. Take a new part of body such as armpits and genital area between the thigh. There is the thick hair that is growing in these regions, which can also become darker in color. और इस हेयर का जो कलर होता है वो डार्क होता है. ओके, डार्कर इन कलर. Thinner hair can also appear on legs and or arm पर और legs पर. There thin hairs that is developed as well as on the face, और चेहरे पे भी thinner hairs are growth. The skin frequently become oily and might begins to develop pimples. और जो स्किन होती है फेस की वो ऑयली हो जाता है. एंड इफ़ वी नॉट वॉश इन 1 day 4 to 5 times, यदि माउथ को अपने आप 4 to 5 टाइम नहीं धोते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पिंपल्स निकल आते हैं इन दिस एज.
ठीक है, क्यों निकलते हैं? बिकॉज ब्लॉकेज ऑफ द पोर्स. We begins to be conscientious and aware to both our own bodies and those of others is new ways. ठीक है, और इस कंडीशन में मेल एंड फीमेल या गर्ल्स एंड बॉयज़ अपने बॉडी की ज़्यादा केयर करते हैं. ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं. ऑन द अदर हैंड्स देर आर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. कुछ चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं. इन गर्ल्स, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स, दैट इज अपीयर. सेकेंडरी कैरेक्टर मीन्स आफ्टर ग्रोथ जो कैरेक्टर जो चेंजेस आते हैं बॉडी में उसको हम सेकेंडरी कैरेक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो इन केस ऑफ गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट. ठीक है, ब्रेस्ट उसमें इंक्रीज करता है, डेवलप करता है और टिप पर ब्लैक कलर हो जाता है. ऑल्सो गर्ल्स बिगिंस टू मिनिस्ट्रेट एट अराउंड दिस टाइम, और यहाँ पर इसमें मिनिस्ट्रेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है. बॉयज़ बिगिंस टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, और बॉयज़ में फेस पर न्यू हेयर्स आ जाते हैं. एंड देयर वॉइस बिगिंस टू क्रैक, और इनकी वॉइस क्रैक मतलब मोटी होती है. और गर्ल्स में जो होता है वो थिन होती है, पतली होती है एंड स्वेटी होती है. ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स. और ये जो चेंजेज आते हैं बॉडी में मेल एंड फीमेल या गर्ल्स एंड बॉयज़ में, ठीक है, ये स्लोली होते हैं. दे डू नॉट हैपन ऑल एट दैट सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज. ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन में एक साथ ही सभी जो सेकेंडरी कैरेक्टर अपेयर होते हैं शो करें. ठीक है, कुछ में स्लोली होते हैं, कुछ में फास्टली होते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं जो एग्जैक्ट एज है, मतलब जो बताया अभी कि आफ्टर 16 ईयर, उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी. ठीक है, गर्ल्स में बिफोर 12 ईयर्स. इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली. ठीक है, कुछ में बहुत पहले और जल्दी होता है. वाइल इन द अदर्स दे कैन हैपन वेरी स्लोली, और दूसरे में बहुत स्लोली होता है. ऑल्सो इस चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर. ठीक है, और सभी कंप्लीट भी नहीं होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज़ अपीयर्स एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट. जो बॉयज़ में पहले बियर्ड आता है, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है थोड़ा थोड़ी जगह पर. ठीक है, एंड ओनली स्लोली डज दे ग्रो बिगिंस टू बिकम यूनिफॉर्म, और धीरे धीरे वो एक यूनिफॉर्म में आ जाता है. इवन सो ऑल दिस चेंजेस सो डिफरेंट बिटवीन पीपल्स, मीन्स मेल एंड फीमेल में ये डिफरेंट शो करता है. ओके, सो वी डिस्कस हियर द sexual dimorphisms and what is different between the male and female in puberty stage. Puberty, yes, एक टॉपिक था puberty, just like that is given here. Puberty क्या है? This is the growth period, means after the birth, before attain the reproductive stage. reproductive से पहले और ग्रोथ के साथ बर्थ के बाद जो ग्रोथ होती है बॉडी में उसको हम puberty बोलते हैं. ओके, प्यूबर्टी के बाद उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है. मेल एंड फीमेल दोनों में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. इन केस ऑफ मेल गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम द टेस्टिस, और मेल गैमेट्स को हम प्रोसेस कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. उसी तरह फीमेल जो गैमेट्स होता है दे रिलीज फ्रॉम द ओवरी, जिसको हम oogenesis बोलते हैं. oogenesis, ओके, एक फॉर्मेशन. उसके बाद जब गैमेट फॉर्म हो जाते हैं तो इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ट्रांसफ़र करना वो इंसेमिनेशन कहलाता है. फर्टिलाइजेशन आफ्टर इंसेमिनेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इम्प्लांटेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट है उसमें डिवीज़न होता है 2, 4, 16 स्टेज, मतलब जब वो 8 to 16 स्टेज का जाइगोट हो जाता है, देन अटैच फ्रॉम द यूटेरस वॉल, द टर्म इज नोन एज द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन इज ए प्रोसेस इन विच जाइगोट अटैच्ड विद द यूटेरस वॉल. ओके, पार्टुरेशन.
After completely developed the zygote, they delivered from the body, outside from the body, is known as the parturition. Means after 9 month plus minus 5 days के बाद मैच्योर जो बेबी बॉडी से रिलीज होता है उस पीरियड को हम कहते हैं पार्टुरेशन. दैट इज क्लियर. दिस इज द डिफरेंट इवेंट दैट इज अकर्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. Okay, next we discuss here is the male reproductive systems. So in case of male reproductive system, there are different parts are occurs. First one is the one pair of testes. In case of male reproductive systems, one pair of testes are present. You see here, a testis है, one pair of testes are present. Testes are present in a pouch-like structure, this is known as the scrotum. इसको scrotum कहते हैं. The temperature of scrotum is less than 2 to 3 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी का टेम्परेचर है यहाँ आपका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है. वाई दैट इज द लो दैन द body temperature? Because this is the responsible for the formation of male gametes. Okay, that is clear. Second part है epididymis. On the surface of testes you see this structure is known as the epididymis. When the release of the male gametes from testis, first that is storage in the epididymis region. epididymis में रीजन में स्टोर होता है. यहाँ पे इसको नरिशेस न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है जिससे मेल गैमेट डेवलप्ड होते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट द मेल गैमेट दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम epididymis to the seminal vesicle region. There is tubular structure are present, one pair are present. This is known as the vasa differentia. You see the structure is vasa differentia, which is the transfer of male gametes from testis to the seminal vesicles. Okay, seminal vesicle से फिर वो रिलीज होता है through the urethra. Next topic is the urethra. Urethra, this is the ejaculatory duct which are responsible for the release the urine as well as the male gametes. Okay, that is clear. This is the different part of reproductive system of male. In case of male reproductive system, there is the duct are present. 3 duct are present. First one is the seminal vesicle, second prostate gland, and third Cowper glands. Okay, 3 ducts are present in case of male gametes. तो seminal vesicle का क्या फंक्शन है? They are the pair of lobules glands and they produce 60 to 70% of the semen. मतलब मेल गैमेट का 60 to 70% भाग बनाता है. And they having the fructose, protein and other chemicals for nourishing. ठीक है. या जो मेल गैमेट्स आता है उसको नरिशेस प्रोवाइड करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड्स, it is the single pair pyramidal glands that occur in area of union of urethra with ejaculatory duct. Secretion of prostate gland is thick, milky and alkaline. इसके द्वारा भी milky and alkaline liquid का secretion होता है. It contain the chemical essential for the motility of sperm. और ये chemical रिलीज करता है जो मेल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कॉपर ग्लैंड्स, अगला ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है, दे आर पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स दैट ओपन इनटू द यूरोजेनाइटल डक्ट. ठीक है, स्मॉल पेयर ग्लैंड्स है जो यूरोजेनाइटल डक्ट में खुलता है. इट इज़ द सिक्रेशन इज अल्कलाइन और यह भी अल्कलाइन सिक्रेट करता है. द सिक्रेशन लुब्रिकेट्स यूरोजेनाइटल डक्ट एंड न्यूट्रलाइज इट्स एसिडिटी.
और बिफोर एजुकेशन ऑफ स्पर्म ये रिलीज होता है, और इसका मेन रीजन अल्कलाइन होने का ये क्या करता है, जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, ठीक। और सेम पाथवे है, रिलीज होता है यूरेथ्रा के थ्रू, तो उसको पहले ये अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। पहले ये रिलीज होता है लिक्विड, जिससे कि मेल गैमेट्स किल्ड ना हो। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड अ पेनिस। एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम यूरेथ्रा टू द female reproductive tract is known as the penis. Okay, next human reproductive system, that is the female reproductive systems. In female reproductive system there is similar or process an organ are present which are present in case of male, just like first one is the one pair of ovaries. In female reproductive system there is one pair of ovary are present which are present in left and right, या लेफ्ट और राइट यू सी हियर, लेफ्ट एंड राइट में ओवरी प्रेजेंट है, एक पेयर वन पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन पेयर ऑफ फेलोवियन ट्यूब एंड ओविडक्ट, इसमें एक पेयर फेलोवियन ओविडक्ट होता है, लेफ्ट एंड राइट होता है, जैसे एक ये है एक ये है, ठीक है। तो वन पेयर में आपका फेलोवियन ट्यूब और ओविडक्ट भी प्रेजेंट होता है। और यूटेरस, एक वॉम्ब होता है, एक यूटेरस होता है। वेजना और वेजना एंड बर्थ कैनाल, एक वेजनल पार्ट होता है, ओके, ये वेजनल पार्ट है। ये वेजना है, दिस इज आल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल, ठीक है। आफ्टर मैच्योर द बेबी दैट इज डिलीवर फ्रॉम द वेजना, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में बात करते हैं। यू सी हियर वन पेयर इज ओवरी आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, वन पेयर ओवरी प्रेजेंट है। अब ओवरी से अटैच देर इज द, या इन केस ऑफ जो ओविडक्ट है या फेलोवियन ट्यूब का, उसका एंडिंग पॉइंट देर इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स, दिस नोन एज द फिम्बरी। यू सी द स्ट्रक्चर, फिम्बरी आर प्रेजेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी? दे कैप्चर द मैच्योर egg cell which are released during the implantation, during the ovulation, sorry, this is the ovulation, means release of mature egg cell from ovary, that is capture या capture through the फिम्बरी। और ये कब होता है? ओवुलेशन के समय, ठीक है। और फिम्बरी से यह मूव करता है इन फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस रीजन में। दिस इज द पार्ट ऑफ फेलोवियन ट्यूब्स या ओविडक्ट, ठीक है। यहाँ इन फंडिबुलम रीजन है, एम्पुला रीजन, देन इस्थमस, ठीक है। और इन केस ऑफ फीमेल द फर्टिलाइजेशन अकर्स एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन, दोनों का जहाँ जंक्शन होता है, एम्पुला और इस्थमस जंक्शन होता है, वहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल गैमेट दैट इज गोज फ्रॉम दिस साइड्स एंड फीमेल गैमेट दैट कम फ्रॉम दिस साइड्स, एंड दैट इज फ्यूजन द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन। कॉमनली उसको कहते हैं फेलोवियन ट्यूब में या ओविडक्ट। यदि एक पर्टिकुलर रीजन का पार्ट यदि पूछता है तो वो इस्थमस एंड एम्पुला जंक्शन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यह मूव करता है यूटेरस वॉल की तरफ, और इसमें डिवीजन चालू जाता है। दिस डिवीजन इज द क्लीवेज डिवीजन। यह डिवीजन जो होता है अदर डिवीजन से डिफरेंट होता है। क्लीवेज डिवीजन में क्या होता है? देयर इज द डिवीजन अगर बट नो इंक्रीज द साइज, इसकी साइज इंक्रीज नहीं करती। दूसरे डिवीजन में क्या होता है? इंक्रीज इसकी साइज भी करती है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी साइज इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। जब वो डिवीजन 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 सेल हो जाता है, दे अटैच विद द यूटेरस वॉल। यू सी द दिस द यूटेरस वॉल, इसके सरफेस से आके अटैच होता है। इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, मीन्स अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट विद द यूटेरस वॉल इज नोन एज द इम्प्लांटेशन,
अब यूटेरस वॉल की बात करें, दे आर 3 लेयर आर प्रेजेंट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, इनर पार्ट पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडल रीजन होता है, एंडोमेट्रियम आउटर रीजन होता है जिस पर जाइगोट अटैच करता है। ठीक, यही एंडोमेट्रियम लेयर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह ब्रेकिंग हो जाता है, टूट जाता है और म्यूकस और ब्लड के साथ वेजना के थ्रू रिलीज होता है, जिसको हम मेनिस्ट्रल फ्लो बोलते हैं। क्लियर, दिस द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। यदि एग में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर 1 day एंड इज देन एक्सपेल्ड। एक दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद एक्सपेल्ड हो जाता है। ठीक है, दिस सेट इज द मोशन व्हाट इज द कॉल्ड मिनिस्ट्रल और ओवेरियन साइकिल। यही मोशन जो फ्लो होता है उसको हम मिनिस्ट्रेशन फ्लो या ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। Menstrual cycle is the series of cyclic changes that occur in the reproductive system of human female with a periodicity of about 28 days। ठीक है, menstrual cycle जो होता है cyclic changes reproductive stage में होता है इन केस ऑफ फीमेल बॉडीज, और ये आफ्टर 28 डेज के बाद रेगुलर होता है। एवरी मंथ द यूटेरस प्रोसेस इट सेल्फ नो रिसीव द फर्टिलाइल एग्स। ठीक है, यदि मंथ में एवरी मंथ में यदि फर्टाइल एग यदि ऑप्टेन नहीं होता है, इट्स लाइनिंग और एंडोमेट्रियम बिकम थिक एंड स्पॉन्जी फॉर द नरिसेस एंड फोइटस इफ फर्टिलाइजेशन वुड बी टेक्स प्लेस। उस कंडीशन में यदि फर्टाइल एग है तो उस कंडीशन में एंडोमेट्रियम लेयर आपका थिक हो जाता है एंड नरिसेस उसको प्रोवाइड करता है, स्पॉन्जी हो जाती है। In the absence of fertilization, the lining breaks down slowly and come out of vagina along with blood and mucus। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो लाइनिंग उसकी ब्रेक हो जाती है स्लोली एंड कम्स आउट विद वेजना विद द ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड और म्यूकस के साथ वो वेजना के थ्रू रिलीज होता है। द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज कॉल्ड मेनिस्ट्रेशन। इसी को मेनिस्ट्रेशन कहते हैं। इट लॉस फॉर 3 to 5 days। मेनिस्ट्रल साइकिल बिगिंस विद प्यूबर्टी। ठीक है, इसका स्टार्ट प्यूबर्टी में होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रोसेस इन अकर इन केस ऑफ फीमेल। फर्स्ट वन इज द मेनार्क। मेनार्क क्या होता है? मेनार्क, इट इज़ द फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन इन द लाइफ ऑफ गर्ल्स and it occurs at the age of 11 to 13 years and it is the indication of reproductive life। okay, menstruation क्या है? it is the end of menstruation, menstruation it is the discharge of blood mucus and broken endometrial lining। इट इज़ कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। दो हार्मोन्स होते हैं, इसकी डिफिशियंसी के कारण होता है क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स एंडोमेट्रियम लेयर को थिक बनाते हैं। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसका जो सिक्रेशन होता है कम हो जाता है, जिसके कारण डिग्रेड होता है। इट अकर्स ऑन फर्स्ट 3 to 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में 3 to 5 days ही इसका सिक्रेशन होता है। इट इज़ द प्रेसिडेड बाय डिजनरेशन ऑफ कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम का डीजनरेट भी होता है। कार्पस लूटियम क्या होता है? आफ्टर दैट इज रिलीज द मैच्योर एग सेल, जब बाहर निकलता है तो उसका जो आउटर पार्ट होता है टर्शियरी लेयर ओवरी का, उससे कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है विच इज मेंटेन द एंडोमेट्रियम लेयर। एंड मेनिस्ट्रेशन दैट इज मीन्स दैट इज द इंडिकेटर ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओवुलेशन क्या है? that is the release of mature egg cell from ovary is known as the ovulation। and last one is the what is the menopause? it is the end of menstruation in the life of woman। woman के लाइफ में जब एंड हो जाता है menstruation फ्लो को, उसको हम कहते हैं menopause। and menopause occurs at the age of 45 to 50 years। 40 से 45 एज के बाद ये होता है। इट इज़ द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ, और यह रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंड होता है, मतलब उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लास्ट टॉपिक है, इसको हम शॉर्टली में डिस्कस कर दे रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
नेचुरल मेथड इसमें है पीरियोडिक अब्सेंस, मतलब जो अभी बताया कि एवरी मंथ के 14 डेज में 14 डेज के बाद मैच्योर एग से रिलीज होता है, ठीक है। यदि उस ड्यूरेशन में फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, यदि नहीं होता उस कंडीशन में तो वो प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो उसको वो कहते हैं पीरियोडिक अब्सेंस। उस जो मेन पीरियड है उसके बिफोर 3 डेज एंड आफ्टर 3 डेज, ये आपका सेफ पीरियड है। यदि इसमें फर्टिलाइजेशन ना किया या फ्यूजन ना हो गैमीट का तो सेफ पीरियड है, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्वार्टर्स इंटरप्ट्स बिफोर एजुकुलेशन ऑफ मेल गैमेट, दे इरेक्ट द पेनिस आउटसाइड्स। नेक्स्ट वन इज द लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड्स। लैक्टेशनल मीन्स यदि चाइल्ड है दिस द लेस दैन 6 मंथ, यदि बच्चा है यदि 6 महीने से पहले का, तो उस कंडीशन में भी आपका प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट वन इज द बैरियर मेथड। दैट आर डिफरेंट बैरियर मेथड्स, कंडोम्स इनके फॉर द मेल, cervical caps and walled cap for the female. Next one is the chemical method. Some chemical that is used for the killing of the male gametes, just like that is the cream, jelly and foaming tablet that is used for the keep inside the vagina region, that is kill the male gametes. Hormonal oral intrauterine contraceptive devices. Some intrauterine contraceptive devices that are used, just like a copper T. Okay, copper T यूज़ किया जाता है फॉर द किलिंग द मेल गैमेट्स। हार्मोनल इंजेक्शन, बॉडी में कुछ हार्मोन का इंजेक्ट किया जाता है, इसको डोपामिन बोलते हैं। दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स नियर अबाउट 3 मंथ टू द 1 ईयर्स तक, 3 ईयर तक भी हो सकते हैं। Sterilization surgical method. This is the surgical method that is used for the prevention of male and female gametes. Vasectomy in case of male, that is the cut the vas differentia and they tied. This is known as the vasectomy. In case of female, tubectomy process is known, that is cut the fallopian tube and tied them. And morning after pills, this is the use the orals after fertilization before 24 hours, that is taken, that is the kill the zygote. Okay, so this is the different reproductive health. Thanks.